Hi friends, welcome to English Study Point. Today here in this video lecture, I am going to discuss with you about a literary movement that is decadent movement. So, decadent means whenever there is a reflection of some kind of a state of moral as well as cultural decline, this is called as decadent. Now, this movement was started or began in late 19th century both in the field of art as well as literature, and it grew first popular in France, and from France this movement kept on spreading in different parts of countries such as Europe and US also. And also this decadent movement came into limelight when Charles Baudelaire published his work Les Fleurs du Mal. When we translate this work into English, it means the flowers of evil. After publication of this work, this movement, that is decadent movement, came into limelight, and now this concept of decadence grew more popular or inspired from the writings of Montesquieu, who was an enlightenment philosopher, and he highlighted or identified two reasons or causes that led to fall of Roman Empire. First one is cultural degradation and another one is moral decay. So these are the two causes which led to fall of Roman Empire. And now it is very important for you to know why this decadent movement began. So this movement began or started as a result of this movement was started as a kind of reaction against people's blind acceptance to traditional norms and people's blind acceptance to this traditional norms. This became a major reason that led to decline in quality of art as well as literature. How people's blind acceptance to traditional norms ultimately led to decline in quality of art as well as literature, because whenever people are following traditional norms, so they are creating art based upon some rules and regulations, and in a way they are binding themselves following those rules and as well as regulations, and then on the basis of it they are creating any sort of art which won't allow their free flow of thoughts to bring into practice, and also they are not able to use their imaginations because they are creating that form of art which is based upon rules as well as logic as well as regulations. So if so ever they are following traditional norms, then ultimately they are declining quality of art because they are not bringing into practice their imagination. They are not allowed to run their thoughts freely, and this is the main reason this particular movement was started. And another reason that led to start of this movement was that followers of such kind of movement believe that art should be created for the sake of art, but these followers observe that now these days art is not following this phrase that is art for art's sake. Now these days art, whenever any kind of artist trying to create art, he try to merge so many emotions into that picture while creating that picture, such as social, political as well as economic. So these interferences should be kept outside the arena of art. So these followers trying to emphasize much upon this point that art should only be created for the sake of art. It should not involve any kind of interferences which involve social, political, cultural, economic. So these interferences should be kept outside the arena of this particular while trying to create art. And also another major reason that led to start of this movement was that these followers emphasize much
also upon this point that now these days uh, these contemporary writers as well as scholars are sensing that there is lots and lots of degradation of cultural standards, as well as there is decay in morality. So due to moral decay as well as degradation of cultural standards, so as a result of these three reasons, this particular movement, that is decadent movement, started, because these followers observe so many degradation in different forms. So as a result of it, this particular movement started. Now I am describing about this movement in a elaborative manner. So this was a late 19th century artistic as well as literary movement, which was centered in Western Europe, and it was first grew more popular in France, and later on this movement kept on spreading in different parts of countries such as Europe and also US as well. Now, this concept of decadence, as I've already told you, that was inspired much from the writings of Montesquieu, who was an Enlightenment philosopher, and he identified two major reasons that led to fall of Roman Empire, and those reasons are: first one is moral decay, and another reason that these followers observed is that there is loss of cultural standards. So these are the two reasons that led to decline of Roman Empire. And also we see that now these days this process of industrialization overpowered minds of people so much that they became slaves of this process, and as a result of it they become more materialistic and excessively competitive. Some people became so depressed as they are unable to compete with this competing world, and also showcasing lots and lots of people who are filled with lust, sexual lust. And also these followers of these movement try to depict a lot many things in their work, such as people it talks about people's depressed state, as well as lots and lots of people are becoming more greedy in this industrialized world because they exhausted themselves so much in this industrialized world that they are so much, they became slave of this process. And also people day after day they are committing suicide because they are not able to fulfill requirements of their family and also of themselves. In this competing world they have to do lots and lots of hard work, and also there is no support. People are now these days are so much callous, they are filled with immense of callousness, as well as bar they became more barbaric. So these are the results or causes which led to fall of Roman Empire. Now this movement was a kind of reaction to a perceived loss of cultural standards. So how there is loss of cultural standards? Now these days people became more lusty of flesh, people inside society manipulating each other, which increase a kind of rift in between society. People lack capacity to understand emotions, they are totally emotionless. And also people became more greedy for power, for money. So these are the reasons which led to people's loss of cultural standards, and also they are ready to take lives of other people for the sake of gaining power in different spheres of life. Now, decadent is a period in literature that sought to describe cultural decline. The artists and scholars sensed in their contemporary world. So, decadent एक इस तरीके का पीरियड था लिटरेचर में जहाँ पर आर्टिस्ट उस चीज़ को शोकेस करना चाहते थे कि आज के इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हमारे कल्चर के स्टैंडर्ड्स डे बाय डे डिक्लाइन होते जा रहे हैं। इस चीज़ को शोकेस अपने वर्क्स के थ्रू करते थे, एंड अपने वर्क्स के थ्रू ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते थे
एंड इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं कि क्यों हमारे कल्चर में हमारी कल्चर का स्टैंडर्ड जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता जा रहा है। क्योंकि आज लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए हैं, इमोशनलेस हो गए हैं। उनको हर चीज़ में वो पैसा देखते हैं, पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। एंड इमोशंस की आज इस वर्ल्ड में कोई वैल्यू नहीं रह गई है। एंड साथ ही साथ सोसाइटी में ही रहने वाले लोग अपनी सोसाइटी के बीच में रिफ्ट क्रिएट करते हैं, एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं। एंड साथ ही साथ पीपल लैक कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड इमोशंस और अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने एडवांटेज के लिए वो एक दूसरे की जान भी लेने पर तुले हैं। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे कल्चर में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एंड इस चीज़ को सबसे पहली बार मोंटेस्क्यू ने अपनी राइटिंग्स में हाईलाइट किया था। उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया डिकेडेंस। एंड उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इन सब चीज़ों को बताने की कोशिश की। एंड ये सारे रीज़न्स जो कि कॉजेज़ बाद में जाकर बन गए, एंड यही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल बनी रोमन जो कि एक कल्चर था, रोमन कल्चर के डिक्लाइन में यही सारे रीज़न जो कि कॉजेज़ बन गए, जिनकी वजह से बाद में रोमन का डिक्लाइन होता चला गया। Then they emphasize much of the purpose of art and literature had been lost, and this line suggests that major purpose of art as well as literature is to delight people, create beautiful or entertaining works to please and entertain people and artists themselves, so which kept on losing, because art now these days people are creating art not for the sake of art. They are creating art, and also while creating art they are linking so many emotions into that particular art, which does not allow to fulfill this criteria of this phrase, that is art for art's sake. Then this movement challenged traditional values of logic and artist. yes, इस movement के थ्रू इस चीज़ पर भी emphasize किया गया कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है आर्टिस्ट की, वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ बार बार उसी चीज़ को अलाउ करती है कि तुम ट्रेडिशन को या फिर लॉजिक को फॉलो करके एक आर्ट को क्रिएट करो, जिससे क्या होगा, आर्टिस्ट बाइंड होता चला जाएगा। एंड अगर वो बाइंड होता जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं आर्ट को क्रिएट करते समय रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, जिसका बेसिस पर वो किसी आर्ट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है लॉजिक का यूज़ करके। तो इस हिसाब से वो बाइंड होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उसके रियल इमेजिनेशन है, रियल थॉट्स है, वो कभी फ्लरिश नहीं हो पाएंगे। एंड जो उसकी क्रिएटिविटी है वो कभी आ नहीं पाएगी, वो सिर्फ उसी बेस पर बन जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, जब भी वो किसी भी आर्ट या फिर लिटरेचर के वर्क को क्रिएट करेगा तो वो लॉजिक पर बेस क्रिएट करेगा, जिसकी एंड उसे फॉर्म करते समय वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज़ करेगा, जिससे किसी भी तरीके का जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा, ना ही उसकी इमेजिनेशन रिफ्लेक्ट होकर उसके वर्क में दिख पाएगी, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। सो दिस मूवमेंट चैलेंज ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ लॉजिक एंड आर्टिस्ट इंटरेस्ट इन द नेचुरल वर्ल्ड। एंड साथ ही साथ इस चीज़ में इस मूवमेंट के जो फॉलोअर्स हैं वो इस चीज़ को भी हाईलाइट करते हैं कि आर्टिस्ट का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने में है, यानी नेचुरल सराउंडिंग्स को रिफ्लेक्ट करने में है। अगर वो नेचुरल सराउंडिंग्स को रिफ्लेक्ट कर ही रहा है तो वो कहीं ना कहीं एज इट इज़ सोसाइटी को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके का नेचुरल सराउंडिंग वाकई में है, वही चीज़ वो आर्ट के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ऐसी चीज़ कर रहा है, यानी नेचर को सेम इमिटेट करके आर्ट में पुट ऑन करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को इस हिसाब से वो एंटरटेन नहीं कर पाएगा, और यही रीज़न बन जाएगा आर्ट के डिक्लाइन होने का। आर्ट और लिटरेचर डिक्लाइन होती जा रही है क्योंकि आर्टिस्ट
हूबहू जिस तरीके से नेचुरल सराउंडिंग्स में चीज़ें चल रही है उसी को आर्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके थ्रू कोई यूनिकनेस बाहर नहीं आ पाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ को इमिटेट कर रहे हैं एज इट इज़ वे में, तो इसमें क्या यूनिकनेस नज़र आएगी। तो इसलिए डिकेडेंट मूवमेंट के फॉलोअर्स बार बार इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते रहे। सो दिस मूवमेंट चैलेंज ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ लॉजिक एंड आर्टिस्ट इंटरेस्ट इन द नेचुरल वर्ल्ड। नाउ Theophile Gautier and Charles Baudelaire first used this word decadence। तो ये दो चार्ल्स बॉडलेयर एंड थियोफाइल गॉटियर, ये दोनों ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने इस वर्ड को सबसे पहली बार यूज़ किया, डिकेडेंस को। एंड चार्ल्स बॉडलेयर ने डिकेडेंट का सबसे पहली बार यूज़ किया अपने वर्क में, जिस वर्क का नाम है लेस फ्लोर्स द्यू माल, द फ्लावर्स ऑफ ईविल, जिस वर्क में इन्होंने डिग्रेडेशन के बारे में, कि हमारा कल्चर किस तरीके से, हमारे कल्चर के स्टैंडर्ड्स डिक्लाइन होते जा रहे हैं, मोरल डिके देखने को मिलता जा रहा है। तो इन्होंने अपने वर्क में इन सभी चीज़ों को साथ ही साथ रीजंस को मेंशन करने की कोशिश की, एंड इन्होंने ही सबसे पहली बार डिकेडेंट वर्ड का यूज़ किया। देन ही ट्राइज टू डिस्क्राइब अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटेगरीज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। यस, इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो हम कैटेगराइज करते हैं आर्ट और लिटरेचर को, से यानी डिकेडेंट मूवमेंट के फॉलोअर्स ने इस चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की एंड दिखाने की कोशिश की कि आर्ट और लिटरेचर दोनों डिस्ट्रक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें आर्ट को क्रिएट करते समय या फिर लिटरेचर को क्रिएट करते समय या फॉर्म करते समय आर्टिस्ट या फिर ऑथर क्या चीज़ को पेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो लाइफ को एज इट इज़ वे में दिखाने की कोशिश कर रहा है। आर्टिस्ट का मतलब यानी आर्टिस्ट का एम आर्ट को क्रिएट करने का ये नहीं होता कि लाइफ को एज इट इज़ वे में, यानी नेचुरल सराउंडिंग्स को एज इट इज़ वे में अपने वर्क के थ्रू पोर्ट्रे करना। तो उसमें भी उसे भी शोकेस करते समय क्रिएटिविटी शो करनी चाहिए, उसे फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स में और भी ज़्यादा यूनिकनेस लेकर आनी चाहिए। देन दिस मूवमेंट ग्रू आउट ऑफ लेटर राइटिंग्स, एंड बाद में जाके ये मूवमेंट और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कुछ स्कॉलर्स की राइटिंग्स के थ्रू, जैसे कि डिज़ायर निसरात, हु आइडेंटिफाइड द लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द रूल्स ऑफ आर्ट। एंड डिज़ायर निसरात ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आर्ट के रूल्स को जानने में इंटरेस्ट चला गया है, यानी वो आर्ट के रूल्स को जानना ही नहीं चाहते थे। अगर वो आर्ट के रूल्स से के थ्रू किसी भी वर्क को क्रिएट करना चाहते तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बाइंड कर रहे हैं उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, जिसके थ्रू उनका किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम एक ऐसी आर्ट को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। तो हमें इस तरीके की आर्ट को क्रिएट करना चाहिए जिसमें कहीं भी किसी भी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, कि किसी भी तरीके की लिमिटेशन ना हो। हम अपने इमेजिनेशन का बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ एंड किसी प्रोडक्टिव वर्क को क्रिएट कर पाएँ जो कि बहुत यूनिक हो एंड हमारी सोसाइटी उससे इंस्पायर हो, हमारी सोसाइटी के लिए ऐसा वर्क या फिर ऐसी आर्ट काम आ सके जो कि कुछ ना कुछ मैसेज, यूनिक मैसेज लोगों को, ऑडियंस को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हो। देन in 1884, a specific group of writers was referred to as decadents। तो 1884 में, यहाँ इन लाइंस में कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, कुछ स्पेसिफिक राइटर्स को, ग्रुप के राइटर्स को रेफ़र किया गया डिकेडेंट्स के नाम से। दीज वर दोज, एंड ये राइटर्स वो लोग थे जो कि चार्ल्स बॉडेलियर की राइटिंग्स के से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे एंड साथ ही साथ गॉथिक लिटरेचर से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। गॉथिक लिटरेचर वो लिटरेचर होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस वे में चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की जाती है एंड ऐसी लिटरेचर में सेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड शोकेस की जाती हैं।
जैसे जेन आयर की शार्लेट ब्रॉन्टे, वो एक एग्जाम्पल है गॉथिक लिटरेचर का। देन रिजेक्शन ऑफ नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ आर्ट, एंड ऐसी इस मूवमेंट के फॉलोवर्स वो हमेशा दूसरों को मैसेज देते थे कि हमें नेचर को हमेशा रिजेक्ट कर देना चाहिए, हमें नेचर को इंस्पिरेशन नहीं मानना चाहिए अपने वर्क का। क्योंकि नेचर क्या है, यहाँ पर वो नेचर यानी सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि हमें सोसाइटी को एज इट इज़ वे में अपने वर्क में नहीं दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए बार बार ये कहते हैं कि हमें नेचर को रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसे हमें अपने वर्क का सोर्स नहीं समझना चाहिए। जब भी हम वर्क क्रिएट करते हैं तो हमें बिल्कुल नेचर को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू हम एज इट इज़ वे में सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिससे किसी भी तरीके की यूनिकनेस रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं आ पा रही है। देन दीज फॉलोअर्स ट्राई टू बी लिटिल नेचर, दे ट्राई टू एक्सप्रेस डिसइल्यूजन पॉइंट्स ऑफ व्यू इन रिगार्ड टू द ट्रुथ दैट कैन बी फाउंड इन द नेचुरल वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हमें कभी भी जिस भी चीज़ को इंसान इस नेचुरल वर्ल्ड में सच मान लेता है, तो हमें बिल्कुल इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारे इस नेचुरल वर्ल्ड में जिस चीज़ को हम सच्चाई मान लेते हैं, जिसे हम ट्रुथ के तौर पर रिगार्ड कर लेते हैं कि हाँ ये सच है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड इसी वे में ये बहुत ज़्यादा अपने डिसअपॉइंट होकर इन चीज़ों पर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि लोगों को इस नेचुरल वर्ल्ड में जो भी ट्रुथ मिलता, यानी जो भी ट्रुथ वो पा रहे हैं या फिर जिस चीज़ को वो सच मान रहे हैं, उसे नहीं मानना चाहिए। देन प्रेजेंस ऑफ आइडियाज़ इन देयर वर्क्स, तो अब हम इनके वर्क्स में क्या क्या आइडियाज़ प्रेजेंट रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने बिलीव्स को सुपीरियरिटी देते थे, बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। यानी ये हमेशा इस चीज़ पे एम्फेसाइज करते थे कि हमें अपने आप को रूल्स एंड रेगुलेशंस में कभी बाइंड नहीं कर देना चाहिए, हमें अपनी क्रिएटिविटी के जो स्पेयर है उसे और भी ज़्यादा एनहांस करते रहना चाहिए, हमें अपने एबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा एनहांस करते रहना चाहिए। किसी भी तरीके की लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। जब भी हम अपने वर्क को क्रिएट करें तो हमारी इमेजिनेशन का स्पेयर और भी ज़्यादा बढ़ते रहना चाहिए, वो हमारे वर्क के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर आते रहना चाहिए। ओवर लॉजिक हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस में बाइंड कर देते हैं, इसलिए हमें लॉजिक्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो कि नेचुरल वर्ल्ड में प्रेजेंट है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्रूड ह्यूमर, क्रूड का मतलब ही कच्चा होता है, तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्रूड ह्यूमर का यहाँ पर मतलब है कि ये नेचुरल वे से ह्यूमर को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते थे। यानी ये अपनी राइटिंग्स में ऐसे आइडियाज़ को डालते थे जिन्हें पढ़कर ऑटोमेटिकली लोग हंसने लग जाएं। तो इनके वर्क्स में इस तरीके के ओरिजिनल आइडियाज़ प्रेजेंट रहते थे जिन्हें पढ़कर बहुत ज़्यादा लोग ऑटोमेटिकली हंसने लग जाए। देन सेल्फ डिस्कस्ड, यहाँ पर सेल्फ डिस्कस की बात की गई है, सोसाइटी से लिंक्ड है। ये कहते थे कि हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होता जा रहा है, एंड लोगों में किसी भी चीज़ की मोरालिटी नहीं है, उन्हें सही गलत का पता नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स में अपने आप को इंडल्ज करते जा रहे हैं, एंगेज करते जा रहे हैं, जैसे कि वॉयलेंस, करप्शन, एंड साथ ही साथ पावर को एक्वायर करने के लिए वो लोग एक दूसरे की जान को लेने पर भी तुले हैं। देन शोकेसिंग सिकनेस एट द वर्ल्ड, यानी सिकनेस एट द वर्ल्ड, यहाँ पे लोगों को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि किस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं। ये वर्ल्ड पूरा सिक होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इमोशंस की लोगों को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, लोगों के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, एंड लोगों की तरफ सिंपैथी या फिर कंपैशन नहीं शोकेस किए जाते। देन जनरल स्केप्टिसिज्म, आज हर एक लोग एक दूसरे पर शक करते हैं बिकॉज किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं है। तो इस तरीके से लोग एक दूसरे के सामने लॉयल्टी, ट्रस्ट शो ही नहीं कर पाते क्योंकि किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं है। देन टेक्स डिलाइट इन परवर्जन, यहाँ पर परवर्जन का मतलब है यानी जो लोग बहुत ज़्यादा गिल्टी हों
यानी इस मूवमेंट के फॉलोवर्स इस चीज़ पर एम्फसाइज़ करते हैं कि लोग अपनी कंडीशन के लिए खुद ही फॉल्टी हैं। यानी लोग अपने कल्चर को डिग्रेड करने के लिए या फिर मोरल जो हमारा कल्चर डिक्लाइन होता जा रहा है, तो इन सभी का कारण लोग खुद हैं। लोग ही इन सब चीज़ों के लिए गिल्टी है। सो takes delight in perversion, emphasize art is opposed to nature। एंड इनका कहना है कि आर्ट को सिर्फ आर्ट के पर्पस से ही क्रिएट किया जाना चाहिए, एंड साथ ही साथ आर्ट को जब भी आर्ट के थ्रू जिस भी इमोशन को शोकेस किया जाना चाहिए वो बिल्कुल नेचर के ऑपोजिट हो, नेचर को रिफ्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए एज इट इज़ वे में। सो उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस ट्रांसफॉर्मेशंस लाए जाने चाहिए ताकि यूनिकनेस इस्टेब्लिश होकर आ सके। देन स्टाइल इन देयर वर्क्स। अब बात करते हैं कि इनके वर्क्स में क्या क्या स्टाइल प्रेजेंट रहती हैं। ये अपनी राइटिंग्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल वे में अपने इमोशंस अपनी राइटिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। देन यूज़ ऑफ स्टाइलाइज्ड लैंग्वेज, यानी काफ़ी ज़्यादा इनकी लैंग्वेज यानी फ्लावरी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू ये टैबू टॉपिक्स यानी जिन टॉपिक्स को ओपनली नहीं डिस्कस किया जाता उन टॉपिक्स को ये स्टाइलाइज यानी ऑर्नामेंटल लैंग्वेज का यूज़ करके उन बातों को रीडर्स के सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। देन टॉक अबाउट इनके वर्क्स में डेथ, डिप्रेशन, मोरालिटी। हमारी ये मोरालिटी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होती जा रही है डे बाय डे। इन सब टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा लस्टी हो गए हैं, सेक्सुअली ग्रिडी हो गए हैं। देन डिकेडेंट लिटरेचर डिस्प्लेज अ फैसिनेशन विद परवर्स, यानी डिकेडेंट लिटरेचर में क्या क्या डिस्प्ले किया जाता है। फैसिनेशन यानी अट्रैक्शन, मॉर्बिड स्टेट्स को दिखाना। मॉर्बिड स्टेट्स यानी लोगों की इल स्टेट, यानी डिसीज्ड कंडीशंस को शोकेस करना। परवर्स यानी इंसान किसी चीज़ को अगर कर रहा है तो वो उसका खुद ही फॉल्टी है। उस चीज़ के पीछे अगर वो किसी को ब्लेम करता है तो वो ब्लेम दूसरों पर लगाने की बजाय वो खुद पर लगाए। अ सर्च फॉर नोवेल्टी एंड सेंसेशन। हम इनके वर्क्स में सेंसेशन को काफ़ी ज़्यादा देखते हैं एंड एक नया थ्रिल होता है, नया चार्म होता है इन ऐसे वर्क्स में। एंड बिलीव इन द सेंसलेसनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एंड ये इस चीज़ पर एम्फेसाइज करते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कोई सेंस नहीं बनता। एंड साथ ही साथ ये इस चीज़ पर एम्फेसाइज़ करते हैं कि लोग जिस चीज़ पर प्राइड करते हैं, अपने आप को चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इतराते हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का किसी भी तरीके का सेंस नहीं है। आज हम आए हैं तो हमें किसी न किसी दिन मिट्टी में मिल जाना है। देन the movement is closely associated with the doctrine of art for art's sake। तो इन लाइंस का मतलब है कि जब भी किसी आर्ट के बेस पर वर्क क्रिएट किया जाना चाहिए तो उस आर्ट का मतलब है कि वो आर्ट के ही पर्पस को से डील करती हो। यानी आर्ट जब भी क्रिएट की जाए तो उनमें किसी भी डायमेंशंस को इन्वॉल्व ना किया जाए, भले ही वो सोसाइटी को पर बात ना की जाए, ना ही उसमें कल्चर के बारे में दिखाया जाए उस आर्ट के थ्रू, ना ही इकोनॉमिक ना ही पॉलिटिकल। सो इन डायमेंशन से हट कर आर्ट को क्रिएट किया जाना चाहिए। एंड जब भी आर्ट क्रिएट की जाए तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसी ओरिजिनलिटी हो जिन्हें पढ़ के लोग रियली ओरिजिनली अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ कि हाँ ये चीज़ सोसाइटी से यूनिक कही गई है इस आर्ट वर्क के थ्रू। देन the term decadence is sometimes used to denote a decline in the quality of art or literature। yes, अब हम इस चीज़ को नोटिस करते हैं या फिर ऑब्ज़र्व करते हैं कि आज हमारी आर्ट या फिर लिटरेचर की क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग सबसे पहला वर्क जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है
वो अपनी इमेजिनेशन को और भी ज़्यादा एनहांस नहीं कर पाते, फ्लरिश नहीं कर पाते, एंड वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को बाइंड कर लेते हैं इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस में, जिसकी वजह से हमारी आर्ट और लिटरेचर की क्वालिटी में डिक्लाइन देखा जाने लगा। एंड अनदर रीज़न ये भी हो सकता है कि जब भी आर्ट को क्रिएट किया जाता है तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटी को एज इट इज़ वे में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो इससे भी कोई यूनिकनेस नज़र नहीं आती है किसी भी तरीके की। तो इस वे में हमारी आर्ट और लिटरेचर की क्वालिटी डिक्लाइन हो रही है। सबसे अच्छा एग्जांपल है पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड। इसमें इन्होंने मोरल डिक्लाइन को दिखाने के साथ साथ अपनी थीम को भी शोकेस करने की कोशिश की है, यानी इनके वर्क की थीम कुछ और होगी, बट इस थीम को शोकेस करने के साथ साथ इन्होंने मोरल डिक्लाइन को भी शोकेस करने की कोशिश की है, सोसाइटी के मोरल डिक्लाइन को। देन मेजर फ्रेंच डिकेडेंस। अब कुछ फ्रेंच डिकेडेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जिनमें से नाम आता है चार्ल्स बॉडेलेयर का एंड आर्थर रिम्बॉड का। देन इंग्लिश डिकेडेंस के नाम है ऑस्कर वाइल्ड, अर्नेस्ट डॉसन एंड फ्रैंक हैरिस। देन विजुअल आर्टिस्ट जिनका नाम है फेलिशियन रॉब्स, इनका वर्क है बॉडी ऑफ वर्क, एंड जॉरिस कार्ल की नॉवल है अगेंस्ट नेचर। ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि डिकेडेंट मूवमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। Then friends, here with this particular video lecture ends. Hope this lecture will help you in your UGC NET English literature exams.